الحمدللہ رب العالمین المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ جو غازی ملت پریس کلب کے جتنے آپ لوگ یہاں پہ ساتھی موجود ہیں اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی پونچھ کی قیادت جو میرے دائیں بائیں موجود ہیں، آپ سب لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ بنیادی طور پہ بہت شارٹ ٹائم پہ ہمارا آل پارٹیز کا ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اور اس میں زیادہ تر چونکہ پارٹیوں کا اس کے اوپر تھا کہ ہم 31 تاریخ کو راولہ کوٹ جو پونچھ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ آل پارٹیز ایک جلسہ عام منعقد کیا جائے، اور جس میں بنیادی طور پہ یہ ایک پیغام دیا جائے عام آدمی تک کہ آزاد کشمیر کی جو تعمیر و ترقی ہے، آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے، آزاد کشمیر کی جو جمہوریت ہے، یہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے محرون منت رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ادوار میں آتی رہی اور وہ اپنا اس کے اندر رول ادا کرتی رہی، اور آزاد کشمیر اور کسی رستے سے آگے نہیں پہنچا ہے، صرف اور صرف سیاست اور جمہوریت کے ذریعے اس مقام تک پہنچا۔ اور آزاد کشمیر میں جو اس وقت کے حالات ہیں اور اس کا اگر ہم موازنہ کریں کہ مہاراجہ کے دور میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، تو اس وقت کا جو پونچھ شہر تھا، کسی نے اگر 9th اور 10th کرنی ہوتی تھی تو وہاں پہ جانا پڑتا تھا۔ اس وقت آزاد کشمیر کی ایک ایک یونین کونسل کے اندر کتنے ہائر سیکنڈری ہیں، کتنے ڈگری کالجز موجود ہیں، کتنے 22 کے ہمارے پاس انٹر کالج اور ڈگری کالجز موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کی 6 یونیورسٹیاں موجود ہیں، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے انڈر چلنے والے 3 میڈیکل کالجز، جن کو آپ 3 میڈیکل یونیورسٹیاں کہہ سکتے ہیں، جبکہ کے پی جیسے صوبے کے پاس بھی سرکاری 3 میڈیکل کالج نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی جو انٹر کنیکٹیویٹی روڈ ہے، یہ جو لنک سڑکیں جس کو ہم کہتے ہیں، تو جب میں گورنمنٹ میں تھا تو ہم نے اس کا ایک کمپیریٹو اسٹڈی کروائی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب اور کے پی کی نسبت آزاد کشمیر کی جو ریشو میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اوپر سے انٹر کنیکٹیویٹی روڈ انفراسٹرکچر ہمارا بہت بہتر تھا۔ ہم اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو ایسے کریں گے کہ جو ہماری وفاق کے ساتھ، جس طرح مظفر آباد کی جو ہماری روڈ بہت بہتر ہو چکی ہے، درمیان میں ایک پیچ ہے، ہمیں راولہ کوٹ تک اگر ایکسپریس وے مل جائے اور ہمیں کوٹلی تک مل جائے تو ٹوریزم کے پوائنٹ آف ویو سے یا باقی جو چیزیں ہم کر دیں، کیونکہ انٹر کنیکٹیویٹی بہت اچھی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو لوگوں کے سامنے شاید لوگوں کو یاد کرانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جی آپ کے پاس جو سیاسی جماعتوں کے جو فورمز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، اور اسی کے ذریعے آپ کی اگر کوئی بڑھوتری ہونی ہے، فروغ ہونا ہے، فلاح ہونا ہے، کوئی کام ہونا ہے، تو وہ صرف اور صرف وہ سیاسی فورم ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو آل پارٹیز کے اندر یہ تھا کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ پیغام دینا تھا کہ سیاسی جماعتیں جب مختلف جماعتوں کے اندر آپ ہوتے ہیں تو وہ کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں، آپ کا ایک نظریاتی طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوگا اور کوئی پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوگا، یا دوسری کسی پارٹی کے اندر اگر موجود ہوگا، تو ایک تاثر باہر ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی ایلیٹ ہے، یہ جو سیاسی قیادتیں، یہ آپس میں جو ہے نا بڑی دشمنیاں رکھتی ہیں، ان کی آپس میں بڑی مخالفتیں ہیں، ان کی آپس میں ایکسیپٹنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی مایوس ہو رہا ہے۔ یہ سارا کرنے کے لیے یہ 4 دن کا ہمارے پاس اس میں تھا، اور ہم چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت پونچھ کے چونکہ بنیادی طور پر ڈیسیژن یہ کیا گیا کہ راولہ کوٹ جو ہے، جو بنیادی طور پہ جو دھرتی ہے شہداء کی، غازیوں کی، مجاہدوں کی اور ان کے وارثوں کی دھرتی ہے، اس سے ایک پیغام دیا جائے اور راولہ کوٹ سے یہ پروگرام کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پونچھ کے ہمارے 10 اضلاع ہیں،
पुंछ के 10 अजला में से 4 जो सीटें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, एक PMLN के पास है, एक JKPP के पास है और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास। तो ज्यादा स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। और फिर यहाँ से हमारे शहर में हमारी क़यादत मौजूद थी और फिर साथ खाई गला से सरदार, फिर हमने कहा कि हजीरा वाला हमारा हल्का, तो ये जो पूरी तौर पे हमारी जो 4 हल्के थे, फिर हमने वस्ती को इसके साथ हमने जोड़ा कि वस्ती का भी इसके साथ लिंक बनता है। लेकिन हम तमाम जगहों से मोबिलाइज करवाएंगे लोगों को। और फिर अगले ही दिन आप लोगों ने देखा कि मैं कोटली था और वहां पे कोटली में हमने चूंकि दूसरी जगहों से लोगों को बादर नहीं किया था, लेकिन हमने कोटली में भी ये कहा कि जी वहां से भी जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आना चाहे वो इसमें आए। तो 20 की रात को मैं 12:30 बजे जब मैं यहाँ पे इसके साबर शहीद स्टेडियम में आया तो हमारे ये सरदार आबुद हुसैन आबुद साहब है, ये सारे लोग वहां पे, आमिर खुर्शीद साहब, ये सारे लोग हमारे स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। हमारे जो दूसरे अभी सीनियर लोगों में से सरदार इफ्तिखार रशीद साहब जो जख्मी पड़े हुए हैं वो भी उस स्टेडियम के अंदर, ये लोग 12:30 बजे मौजूद थे। और उस वक्त हम टेंटों का, ये कुर्सियों का, इस सारी चीज का कि स्टेज कैसे लगेगा, तो ये सारा स्टेज और ये सारे अरेंजमेंट जो थे, अगर चाहे दूसरी पार्टियां भी थी। अच्छा, जब मैं पहुंचा उस वक्त हसन इब्राहिम साहब भी, उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी अपने 25-30 लोगों के साथ वो भी मौजूद थे। लेकिन फिर वो चले गए थे, हम वहां पे मौजूद रहे, हम बाकी इंतजामात को हतमी शक्ल देते रहे। अब एक अजीब सूरत हाल जो देखने में आई कि आपने ये देखा कि हमने फौरी तौर पे अपनी एक कमेटी यहाँ पे अनाउंस की, जो दूसरी शायद कोई पार्टी उस तरह अनाउंस नहीं कर सकी थी, अपने अपने तरीके से पार्टियां काम कर रही होंगी। हमारी कमेटी के अंदर सरदार आबुद हुसैन आबुद साहब थे, सरदार ताहिर अकरम साहब थे, आफिस सगीर साहब थे, आमिर खुर्शीद साहब थे, जाहिद शरीफ साहब थे। वो भी बनाई कि जी अगर कोई मामलात हैं, जो चीज है इंतजामी मुतल्लक है, ये सारी चीजें हमारे लोग मौजूद हैं। हमने जब इस्लामाबाद में इजलास बुलाया था तो हमारे ये जो 3-4 हल्कों के लोग थे उन्होंने बड़ी शदीद रिजर्वेशन दे दी कि जी इस जलसे में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना है तो फिर ये जलसा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से लोगों की नफरत है। लोग ये समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के काम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से रियासत के अंदर नया से नया बयानिया बनाया जा रहा है, रियासत में एक नया बयानिया बन रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सितम ज़रीफी ये है कि जो काम सियासी जमातों के कहने पे होने चाहिए वो किसी और के कहने पे होते हैं। तो सियासी जमातें गैर मुतल्लिक हुई हैं और फिर ऐसे लोगों को वहां पे हमारे पोस्ट में लगाया गया है कि जो पूरा दिन इन कमेटियों को लेके अपने दफ्तरों में बैठते हैं और फिर उनका अगर डिस्ट्रिक्ट में, बरकियात में, एजुकेशन में कोई काम होता है तो वो इन ग्रुपों के काम करवाते हैं और उसकी एविडेंसेस मौजूद है और उससे सियासी जमातें जो है ना, सियासी किसी कारकुन की कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे हालात है। तो हमने ये कहा कि जी हमें यही यकीन है कि जी वजीर आजम साहब इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वजीर आजम साहब का चूंकि ये बुनियादी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और वजीर आजम साहब इस वक्त किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जब वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते तो जो दूसरी जितनी भी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टीज हैं ये उनका होगा। 21 तारीख को जब ये प्रोग्राम था, कुछ उस बात से उनको मना कर दिया कि जी आप स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ सकते। हमारे जो फोकल पर्सन जो जिसमें से जो एक अभी जख्मी है, एक मेरे डायरेक्ट स्टाफ में से कर्नल एजाज साहब है, कल सुबह जो परसों सुबह उनको आके कहा गया कि जी आप भी स्टेज पे नहीं जा सकते। एक अजीब सूरत हाल पैदा होती गई। और इसमें मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि हमारा जो काफिला आ रहा था जो पाँचशोट वाला, जिसके साथ बस्ती का भी था, बाकी तो लोग हमारे शहर के काफिले, खाई गले के, अजीरे के, हमारे मंग पलंदरी बलोच के काफिले भी आए, हमारे पूंछ वन से भी काफिले आए। लेकिन हमारा जो काफिला आ रहा था वो उसकी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस मौजूद है कि काफिले की क्या कैफियत थी। हम जब शहर के नजदीक पहुंचे तो हमारी गाड़ियों को वहां पे रोका गया
जब हम उससे फिर हम आगे आए, हम सिपलाई बाजार और CMH के दरमियान जब पहुंचे तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद होंगी बहुत सारे लोगों के पास कि खुद मैं 40 मिनट तक मैं खुद अपनी गाड़ी मैंने रोक दी कि जी हमारी गाड़ियों को पीछे से रोक दिया गया कि जी इकट्ठे ना अंदर दाखिल हो। और उसमें मैं आपको बताऊं कि अगला सिस्टम ये कि जब हम वहां पे 40 मिनट का इंतजार करने के बाद जब अगले टर्न में आते हैं, उसको कचहरी टर्न कहते हैं, जहां से हम राइट जो है ना हिल टॉप की तरफ मुड़ते हैं जहां से स्टेडियम, तो वहां पे पुलिस वाले मेजॉरिटी वर्दी में थे, उनकी वीडियो मौजूद होंगी और कुछ सिविल कपड़ों में भी थे, वो इस तरह हाथ जोड़ के सब हरा थे। उन्होंने मेरी गाड़ी भी वहां पे रोक ली कि ये गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती। तो मैं खुद गुस्से में मैंने गाड़ी से 3 दफा तो इसमें मैं मजे की आप बात बताऊं कि इसमें हमने जब लोगों को बुलाया था तो हमारे ज्यादा कारकुनों ने ये कहा था कि इन प्रोग्रामों में मतलब उसमें किसी नाम की बात नहीं है कि कौन SP या कौन DC है। लोगों ने कहा था जी इसमें इंतजामिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग इंतजामिया पे टपे हुए, क्योंकि इंतजामिया जो है वो मुख्तलिफ कमेटियों में और इस तरह के काम करती है। तो डिसाइड ये हुआ था कि इंतजामिया का कोई रोल नहीं होगा, ये सियासी जलसा है, सियासी तमाम पार्टियां मिलकर जब कर रही हैं तो सबके दरमियान एक हारमोनी भी मौजूद है, कोई कारकुन एक दूसरे कारकुन के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करे। वहां से जब हम अंदर जाते हैं और जब हम स्टेज के ऊपर जाने के लिए, तो जो हमारा टाइम पहले जाया करवाया गया, स्टेज के ऊपर जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जी वहां पे अगर कोई उल्लू का पठा सिविल कपड़ों में, जो सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा वहां पे ये होती है कि जी एक पार्टी का ये समझेगा कि ये दूसरी पार्टी का कारकुन है। अगर धक्को मुक्की करता है, अगर वहां पे बदमजगी करता है, जो लोग अहमद सगीर साहब जो 4 दिन से इस जलसे को कामयाब कराने के लिए एक एक बंदे के साथ राब्ते में, अगर वो उनके साथ गलोगीर होता है, उनको गले से पकड़ता है और इसी धक्को मुक्की में हमारा सीनियर तरीन बंदा सरदार इफ्तिखार रशीद जिस तरह उस स्टेज से नीचे आता है, वो अल्लाह की ब्लेसिंग हुई कि उसकी अगर वो स्पाइन उस तरह डैमेज हो जाती। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने स्टेज पे जाते इसलिए कहा कि जी पुलिस का यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे इख्तलाफी जलसा ही नहीं था। ये जलसा तो बुनियादी तौर पे इत्फाक और इताद वाला जलसा था, एक हारमोनी वाला जलसा था। तो मैंने कहा जी रावला कोर्ट में, हमने माजी में ये कहा था कि रावला कोर्ट के लोग गैरतमंद लोग हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन में मैंने इलेक्शन कराने से पहले आके रावला कोर्ट पर मैंने ये कहा था कि आप मेरा मान है, आप मेरा गमान है। मैं हाई लेवल पे मुझे कहा गया कि आप बल्दियाती इलेक्शन में जंगो जदल होगा। मैंने कहा जी मैं इस्तीफा पहले देता हूँ, रावला कोर्ट के लोग पूरे आजाद कश्मीर को सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो ये तो हमारा बड़ा हारमोनी वाला प्रोग्राम है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने कहा कि स्टेडियम से बाहर निकले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी यहाँ सिविल कपड़ों में किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे सामने उन्होंने DIG सरदार जहीर साहब को बुला के कहा जी कि ये कह रहे कि जी सिविल कपड़ों में यहाँ पुलिस मौजूद है, सिविल कपड़ों में पुलिस कैसे मौजूद है। जहीर साहब ने कहा जी हमारे पास सारा सिस्टम है, हमने CCTV लगाए हुए हैं। मैंने जहीर साहब को कहा कि सिपलाई बाजार के पास अगर आपका CCTV लगा हुआ है, 40 मिनट तक मेरी गाड़ी खड़ी रही है। अब आप ये देखें कि जो हो हुआ क्या, जो आपके साथ जो मैं आज चीज शेयर करना चाह रहा हूं, तो ये तो ऑल पार्टी जलसा था। उसके बाद इस जलसे की कामयाबी, इसका पैगाम क्या जाना चाहिए था, हमने वो सारा कुछ खत्म कर दिया। हमने सारा कुछ सबूताज करके, जो बंदा 4 दिन से उस जलसे के लिए कि जी उसने एक जो मतलब है बदमाश वहां पे खड़ा सिविल कपड़ों में जो लोगों के कपड़े नोच रहा है, धक्के मुक्के, उसमें वर्दी वाले भी बहुत सारे शामिल। कल पार्लिमानी पार्टी का वजीर आजम साहब ने इजलास बुलाया और उसमें एक मिनिस्टर साहब ने जो बात की, पूरी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने क्या कहा। मैं आज आपके साथ यहाँ से रावला कोर्ट से ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि हम फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास, तो पार्लिमानी पार्टी हमारी पीपल पार्टी, हम उसका इजलास बुला रहे। हमारी सियासत दांव पे है, क्योंकि वजीर आजम साहब किसी खास एजेंडे के ऊपर है। वजीर आजम साहब का यहाँ आना बनता नहीं था। अगर आना बनता था तो वो अपने एक कैबिनेट मेंबर के खिलाफ किस बुनियाद पे उन्होंने FIR करवाई, किन लोगों ने करवाई, इस सारे के अंदर कौन कौन शामिल है,
बहुत सारी चीजें हमारे अपने नॉलेज में है जिसको हम अभी सामने बयान नहीं कर रहे। हम पार्टी की हाई कमान तक, हम प्रेसिडेंट जरदारी साहब तक ये बात उठाएंगे कि जी हमारे साथ ये मामला हो रहा है। कल हमने नेक्स्ट ये यहाँ इलेक्शन है, हमने सियासी दंगल में उतरना है। आप ये बताएं कि जी जो चीज होनी चाहिए थी वो सारा मामला सबूताज करके तो मतलब है कि जी किसी और खाते में डाला गया। तो जो ऑल पार्टीज एफर्ट थी, जो सारे लोग यहाँ पे जमा हुए, जो सारे कारकुन दिन रात लगे रहे, ये जो लोग सारे रात को वहां पे खड़े स्टेडियम में काम कर रहे थे, एक एक बंदे के तरले कर रहे थे कि जी आपने ये प्रोग्राम अटेंड करना है, वो प्रोग्राम किधर गया। तो अगर इस तरह ये चलना है तो इस बिल्कुल हम चूंकि दो टोक मौकूफ रखते हैं, क्योंकि इस जलसे के लिए हमने दिन रात एक करके रखा, हमने एक एक इसकी बारीकी के ऊपर रखा, क्योंकि इसमें ऑनरशिप थी। जब इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज का हुआ तो मैंने वहां पे भी जोर दिया, लेकिन मैंने अपनी पार्टी में मैंने वहां पे भी बड़ा बबंगे दौर ये कहा कि जी वो कुबलाई खान वाला काम न हो जाए कि उसने कहा था कि तालाब में दूध डालना है, हर बंदा कह रहा था कि जी वो दूध डाल देगा मैं पानी डालूं कि जी बंदे ना। लेकिन जब हमने अपने कायदीन बुलाए, अपने सीनियर अहदेदारान बुलाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और खुशी तौर पे जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं इस वक्त और जो बाकी लोग इस वक्त वहां मौजूद नहीं है, हमने कहा जी हम इसको अपना जाती जलसा समझे। हमने चूंकि पार्टी अपना जो पावर शो वो अगले चंद दिनों में हम रावला कोर्ट में इंडिपेंडेंट अपना प्रोग्राम करके दिखाएंगे। हमने 23 में भी किया था, 24 में भी किया था, जब मैं किसी पार्टी के झंडे के बगैर था। अब तो ये शहीदों की जो पार्टी है, जिस पार्टी ने दो अपने कायदीन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, इस पार्टी के फोरम से जब इस गाजियों की धरती से हम अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करेंगे, लोग अपनी स्ट्रेंथ देख लेंगे हमारी। लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें हम हसन इब्राहिम साहब के साथ भी हमदर्दी का इजहार करेंगे कि हसन इब्राहिम साहब इस शहर से इस वक्त वो इलेक्ट हुए थे, उनकी इशू की जो भी मजबूरियां थी, मसाइल थे, बहुत सारे इश्यूज हमने देखे, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा खड़ा रहा। उसकी भी बेइज्जती की गई, इंसल्ट की गई, किसी भी सियासी आदमी की, किसी जिस तरह हसन इब्राहिम साहब को हमने गिरते देखा, पुलिस को बदतमीजी करते देखा, तो ये कौन है मतलब वजीर आजम साहब किसके थ्रू कर रहे, ऑपरेट कर रहे थे, मैसेज जो वायरलेस के ये चल रहे थे। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का, ये मैं बिल्कुल आपको रावलकोट वालों का, कल आप फिर मुझे पूछेंगे कि जी आप यहाँ पे कोई बढ़क लगा के गए थे, क्या होता, मैं बढ़ के नहीं लगाया करता। पीपल पार्टी स्टैंड करेगी। हम शायद इस हुकूमत के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, अगर ये जो चलन है तो इससे काम नहीं बनता। क्योंकि हमने सियासत करनी है, या ये रियासत बचेगी या अनवारुल हक, क्योंकि एक बंदे की वजह से अगर रियासत दाव पे लगी हुई है तो ये निजाम नहीं कर सकता। क्योंकि सारे का सारा आप ये देखें कि जो बयानिया है उसको उल्टाया जाता है, जिस चीज को पॉजिटिव। याकूब साहब हमारे मौजूद थे, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी यासीन साहब मौजूद थे। हमने अनवारुल हक साहब को कश्मीर हाउस में एक बात की, हमने कहा जी कि देखे हमारे लोग ये कहते हैं कि जी आप किसी दूसरे के कहने पे फौरी तौर पे काम कर लेते हैं, पार्टी इररिलेवेंट हो जाती। उस पर अनवारुल हक साहब ने हमें एश्योर करवाया कि जी वो जमाना अब गया, कोई किसी का कहने पे कुछ नहीं होगा, जो होगा पार्टी के कहने पे होगा। मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रेशर है, किसी ग्रुप की अगर 40 मीडिया मतलब सोशल मीडिया झूठी सच्ची पोस्टें आ जाएंगी तो हुकूमत अगर लम लेट हो जाएगी तो फिर ये सियासी पार्टियां क्या करेगी, ये सियासी पार्टियां किधर जाएंगी। इसलिए हम पार्लिमानी पार्टी बुलाएंगे इस्लामाबाद में आइंदा एक हफ्ते के अंदर, और ये बिल्कुल क्लियर है। उसमें हम प्रेसिडेंट जरदारी साहब तक, बिलावल भुट्टो साहब तक ये बात क्लियर होगी कि जी हमारे साथ जो हजरत कश्मीर में हो रहा है ये अनवारुल हक का हमने ठेका नहीं लिया हुआ, ना हम उनको बचाने के लिए ये है कि पूरी की पूरी रियासत दाव पे लगी हुई है और ये सियासत दाव पे लगी हुई है। आइंदा आज सियासी कारकुन जो है, मैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं था, यही रावलाकोट के मुकाम पे मैंने जमात इस्लामी के फोरम से जब ऑल पार्टीज हुई थी तो मैंने कहा था जो सियासी कारकुन होता है वो माशरे का चेहरा मोहरा होता है, माशरा उससे पहचाना जाता है। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कारकुन हो, वो जेकेपीपी का हो, जेयूआई का, आप किसी वार्ड का नाम लेते हैं तो आपको फौरी तौर पर वो कारकुन सामने नजर आता है। अब कारकुन ही इररिलेवेंट हो गया, तो जब कारकुन की कोई हैसियत नहीं है तो फिर बाकी क्या बचेगा।
बाकी एक जो एक बुनियादी तौर पे लोगों के मुंह में बातें डालने के लिए ये अनवारुल हक साहब के जुमले लोगों के मुंह में डाले जाते हैं कि जी यहाँ पे सारे नौसरबाज हैं, ये सारे माफिया करप्ट था, ये सारा ट्रेड करते हैं, वो तिजारत करते हैं, वो हमारी सर आंखों पे। वो जब तिजारत रिलेटेड हमारे साथ को उस हवाले से जब भी बात करेंगे तो हम भी उनका मौक़िफ़ उठा के उस चीज की हमायत भी करेंगे, वो चलवाएंगे। रियासत कैसे चलनी है, मतलब आपके मेंबरान असेंबली की तादाद कितनी होनी है, उनके पर्क प्रिविलेज कितने होने हैं, महाजरीन की सीटें होनी है कि नहीं होनी है। मैंने पहले भी ये चीज एक जगह पे एक दिन कही है कि हमारे पास एक कैबिनेट की हमारे 16, चूंकि आईनी तरमीम के बाद हम 16 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं रख सकते थे। एक मिनिस्टर हम रख सकते थे, वो प्लेबिसिट वाला था, रायशुमारी वाला। तस्नीम असलम जो हमारी यहाँ रावलाकोट की रहने वाली हैं, वो एम्बेसडर रही, तर्जमान थी दफ्तर खारजा की, बड़ी मायानाज सफारतकार है, उनको मैंने अप्रोच किया। हमने कहा जी हम आपको कैबिनेट में लेना चाहते हैं और ये भी हम हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आजाद कश्मीर में एक मिनिस्टर मौजूद है रायशुमारी के लिए। पाकिस्तान चूंकि हमेशा से इस बात का दाई रहा है कि जी रायशुमारी को हर कश्मीरी एलओसी के इस तरफ रहने वाला और उस तरफ रहने वाला ये कहता है जी रायशुमारी को, कश्मीरियों से पूछो भाई ये कैसे रहना चाहता है। तो हम जो उसको तस्नीम असलम साहिबा की चूंकि कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ उनकी अपनी कमिटमेंट थी, वो फ्री नहीं थी, लेकिन वो जगह खाली है, वो कल कुछ भी हमारा मायानाज दूसरा आदमी वहां पे कैबिनेट के अंदर आ सकता है और ये हमारी वहां पे सीट मौजूद है आजाद कश्मीर कैबिनेट के अंदर। तो ये जो सारी चीजें होनी है ये आपकी लेजिस्लेशन के थ्रू होनी है। ये आजाद कश्मीर बेस कैंप है, ये बेस कैंप रहेगा, तो इस बेस कैंप के साथ आप बुनियादी तौर पे मकबूजा कश्मीर के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर आप आजाद कश्मीर में के बारे में बात करना शुरू कर दें, आप ये देखें कि 14 अगस्त जब बनाई जाती है, इस आजाद कश्मीर के परचम को मैंने आर्मी की गाड़ियों के ऊपर, रेंजर्स की गाड़ियों के ऊपर, पाकिस्तान पंजाब पुलिस की गाड़ियों के ऊपर आजाद कश्मीर का परचम रखा जाता है। आजाद कश्मीर का जो तमाम ग्रेस, जो रेस्पेक्ट है, वो पाकिस्तान ने पूरे वकार के साथ, पूरी आन बान शान के साथ बरकरार रखा। आप पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए, और ये हमारे पास जो बहुत बड़ा अच्छा चांस था कि अभी हमारी इतनी बड़ी कामयाबी हुई। आप ये देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, हमारी कौमी सलामती के इदारों की, जो इंडिया के खिलाफ हमने जो जंग में कामयाबी हासिल की, कतर पे जब हमला हुआ, OIC में फील्ड मार्शल साहब को बुलाया गया, और जो अभी सऊदी अरब के साथ जो मायदा हो गया है, देखिए सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है, एक इन्फ्लुएंशियल मुल्क है। कश्मीर के हवाले से जो आपको यहाँ से जो संगे मील मिलना है, वो मेरा ख्याल है ये ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग है, कोई दुआएं कबूल हुई है कि हम हमारे मसले में सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा। जहाँ हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और वहां पे सऊदी अरब को हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। करोड़ों की तादाद में इंडियन जो है वो सऊदी अरब में कारोबार भी करते हैं, मुलाजमतें भी करते हैं। सऊदी अरब G20 में भी आता है। सऊदी अरब मतलब आलमी सतह पे एक इन्फ्लुएंस रखता है, और जब वो हिंदुस्तान पे दबाव बढ़ाएगा, हिंदुस्तान के ऊपर एक 100 करोड़ की आबादी का बोझ है, तो ये हमारे इदारों की एक कामयाबी है। तो आम आदमी को ये देखना चाहिए कि हमने अगर कश्मीर आजाद कराना है हिंदुस्तान से, तो उसके लिए आपको सफारतकारी से ही कराया जा सकता है, आपको डिप्लोमेसी से कराया जा सकता है। तो मुख्तलिफ बयानिए जो यहाँ बनाए जा रहे हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है किया, तो हमारी अगर ये फौज यहाँ पे खड़ी ना होती तो आपको ऑल इंडिया रेडियो से दूसरे दिन पैगाम मिलता जी पूरे पूंछ में जो है ना, डलकोट में जो है ना, हिंदुस्तानी फौज खड़ी है। गजा में क्या कर रहा है इसराइल? तो ऐसे बैठ के एक मतलब बनने टाके के ऊपर बैठ के तकरीरें करने से जो है ना, आजाद कश्मीर नहीं बचता, ना आजाद कश्मीर की लेगेसी बचती है, ना आपके किसी ने यहाँ के कब्जा किया हुआ है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का। आप ये देखें कि मैंने परसों कोटली में ये कहा था, जो आजाद कश्मीर का जो मुलाजिम है ना, जो रिटायर्ड मुलाजिम है, जो 47 से लेके अब तक जो फोत हो गए, जो है 3200 अरब उनका जो है ना सालाना पेंशन है। मेरे जमाने में सबसे हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन थी 50 अरब, राजा फारूक अदर साहब के दौर में। तो ये 3200 अरब कौन देता है? बैठ के जहाँ पे हम बुनियादी तौर पे एक हफ्ते के अब टमाटर आपके पास नहीं है, एक हफ्ते के आपके पास अंडे नहीं है,
تو آج کے بڑی بڑی باتیں کرنے سے مطلب ہے یہ کسی کا بیانیہ یہاں پہ اجیت دیول کے ماڈل اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں کہ آزاد کشمیر میں تباہی و بربادی کیسے لانی ہے، جس طرف ہم اچیو کر رہے ہیں وہ اچیومنٹ ایک طرف جا رہی ہے، تو بنیادی طور پہ ہمیں اپنی جو یوتھ ہے اس کو بتانا ہے کہ اس وقت ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، ہمیں کہاں جانا چاہیے، کس طرح پہنچنا چاہیے۔ اور مقبوضہ کشمیر کے اندر تو جو حالات ہیں، میں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ جو جنگ اس نے جو ہندوستان نے مسلط کی، وہاں پہ ایک خاتون کرنل صوفیہ قریشی وہ ترجمان تھی، جس طرح ہمارا ISPR ہوتا ہے، اس مسلمان خاتون کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اس قربانی عید کے اوپر آپ دیکھیں لوگ جو فلسفے چاڑتے ہیں، کتنے مسجدوں میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے جی آپ گائے ذبح کرنے جا رہے ہیں عید کے اوپر۔ یہ چیزیں آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں چھپی ہوئی ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے جو وفاق ہے، لوگ تو ادھر کہتے ہیں آر پار، میں تو آر پار کی بات ہی نہیں کرتا، میں وفاق کی بات کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ جو ہمارے ملک کے پاکستان کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس کا ہمارے لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ کشمیر اس کو جیل کی مانند ہے، کسی جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کارکن کوئی ایکٹیو ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا پتہ آتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گیا تو کدھر نہیں گیا۔ آپ وریز کے قائدین کے ساتھ جو ہمارے ڈائریکٹ ہمارے رابطے ہیں ادھر ہوتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کے اندر جو لیڈرشپ کا میر وائز عمر فاروق اور جو دوسری ہماری قیادت ہے، ان کے کیا حالات ہیں اس وقت۔ تو یہ میرا یہ تھا کہ آپ کے ذریعے یہ بات پہنچائی جائے، لیکن یہ جو کاروائی کی گئی اس کے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم پارٹی کے اندر اٹھائیں گے، اور جب تک چونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہاں کہا تھا کہ جو کچھ یہاں ہوا ہے انکوائری کی جائے گی، لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، تو وہ انکوائری بھی اچھی ہو گئی، ایکشن بھی اچھا ہو گیا کہ کیبنٹ ممبر کے خلاف، اتحادیوں کے خلاف جو 4 دن سے دن رات ایک کر کے جلسہ کرا رہے ہیں، آپ تماشا بنائے سارا کچھ سبوتاج کر کے، تو آپ کہیں گے یہ FIR کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، بات انسلٹ کی ہے، جس لیول کی یہ انسلٹ کی گئی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کو پراپر جو ہے ہم نے پارٹی لیول کے اوپر یہ 100% میری ذمہ داری ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب تک پہنچانا، اور پارلیمانی پارٹی میں ہم دیکھیں گے کہ جی ایسے تماشا گیر قسم کے وزیر اعظم کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔